جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ ویڈیو میں آپ نے ماہ رمضان المبارکہ کی ایک اہم عبادت اعتکاف کے فضائل آپ نے سماعت فرمائے تھے۔ اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا تھا، یعنی جن لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اس میں یہ دیکھا آپ نے کہ اس میں فضائل اعتکاف بیان کیے گئے تھے۔ اور انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں اعتکاف کے اندر جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، اعتکاف کے مسائل پیش کروں گا کہ اعتکاف کے دوران کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اعتکاف میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اعتکاف شروع کب ہوتا ہے، آپ سن چکے ہیں گزشتہ ویڈیو میں 20ویں رمضان کی غروب آفتاب سے قبل معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا مسجد میں اعتکاف کی نیت سے پہنچ جائے۔ 20 رمضان المبارکہ کے سورج غروب ہونے سے بیشتر وہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں رہے، اور 29 رمضان کو اگر چاند نظر آتا ہے تو چاند دیکھنے کے بعد نکلے، یا 29 کو نظر نہیں آتا تو 30 تاریخ کو چاند جب دکھائی دیتا ہے اس کے بعد معتکف مسجد سے نکلے۔ تو 20ویں رمضان کے غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے اعتکاف، اور اس کے بعد 29ویں یا 30ویں رمضان کو چاند دکھائی دینے پر ختم ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اعتکاف کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں اعتکاف کے لیے عاقل ہونا اور مسلمان ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی مسلمان ہو، عاقل ہو یعنی عقل مند ہو، بس وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ بالغ ہونے کی شرط اعتکاف میں نہیں ہے، یعنی ایک بچہ 10 سال 12 سال کا بھی ہے اور مسجد کے آداب کو جانتا ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، باشعور ہے، تو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک اور چیز یہ، مرد کے لیے اعتکاف ایسی مسجد میں کرنا چاہیے، مرد کو اعتکاف ایسی مسجد میں کرنا چاہیے جہاں امام اور مؤذن مقرر ہوں۔ جس مسجد میں امام اور مؤذن مقرر ہوں، مرد کو اس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اور علماء ارشاد فرماتے ہیں آپ کسی بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن جامع مسجد میں اعتکاف افضل ہے، لیکن آپ کسی مسجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن علماء یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر اعتکاف، سب سے افضل اعتکاف ہے مسجد الحرام میں، جہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کا درجہ رکھتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دن، سب سے افضل اعتکاف مسجد حرام کا ہے۔ اس کے بعد افضلیت مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کی ہے۔ اس کے بعد علماء ارشاد فرماتے ہیں جامع مسجد میں اعتکاف کو فضیلت حاصل ہے۔ اس کے بعد جس مسجد میں جمعہ ہوتی ہو وہاں پر اعتکاف کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں آپ کسی بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں جہاں جمعہ نہیں بھی ہوتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ اعتکاف کے فضائل ترتیب وار ہیں۔ مسجد الحرام پہلے ہے، مسجد نبوی اس کے بعد میں ہے، جامع مسجد اس کے بعد میں ہے، اور اس کے بعد کسی مسجد میں جہاں جمعہ ہوتی ہے وہاں پر ہے۔ اس کے بعد کسی ایسی مسجد میں جہاں جمعہ نہ بھی ہوتی ہو تو آپ وہاں پر اعتکاف کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب عورت اعتکاف کہاں کرے، خواتین اعتکاف کہاں کرے؟ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں عورت گھر کے ایک کونے میں اعتکاف کا انتظام کرے۔ یعنی ہمیشہ سے مسلمانوں کو چاہیے، جس طرح ہمارے گھر میں کچن روم ہوتا ہے
ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है, हर चीज़ का एक रूम होता है। तो नमाज के लिए भी एक रूम मुख्तस कर ले, हमेशा उस रूम को साफ सुथरा करे, उसमें इबादत, रियादत, तिलावत, जिक्र, अफ्तार वगैरह करे। तो उलमा इरशाद फरमाते हैं कि मस्जिद के घर के एक कमरे को आप नमाज के लिए ख़ास कर ले, उसे हमेशा साफ सुथरा रखें। या अगर कोई कमरा ख़ास नहीं है तो एक ऐसी जगह नमाज के लिए मुख्तस कर ले और उस जगह औरत एतिकाफ कर सकती है। और औरत एतिकाफ घर के एक कमरे में करे और वो मस्जिद बैत की नीयत करे, यानी घर की मस्जिद की नीयत करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, और औरत अगर शादीशुदा है तो एतिकाफ करने से पहले अपने शौहर से इजाज़त तलब कर ले। शौहर इजाज़त दे तो औरत एतिकाफ कर सकती है, अगर शौहर इजाज़त ना दे तो वो एतिकाफ ना करे। लेकिन शौहर ने इजाज़त दे दी, औरत ने इजाज़त तलब की मैं एतिकाफ करना चाहती हूँ, तो शौहर इजाज़त दे दे। लेकिन जब औरत एतिकाफ शुरू करे उसके बाद अगर उसका शौहर उसे मना करे तो अब औरत एतिकाफ नहीं तोड़ सकती, उसे एतिकाफ पूरा करना है। और अगर औरत लड़की गैर शादीशुदा है तो वो अपने माँ बाप से इजाज़त ले या घर के जो भी सरपंच है उनसे इजाज़त ले ले और उनको इत्तला दे दे कि मैं एतिकाफ में बैठ रही हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, मोतकिफ के लिए यानी जो शख्स एतिकाफ करता है मस्जिद से बगैर उज़्र के निकलना हराम है। अगर निकला तो एतिकाफ टूट जाएगा, चाहे भूले से ही क्यों ना हो। भूल कर भी बगैर किसी उज़्र के मस्जिद से अगर कोई बाहर निकलता है तो उसका एतिकाफ टूट जाता है। और औरत अगर अपने एतिकाफ की जगह से निकली, रमज़ानुल मुबारक में जो 10 दिन का एतिकाफ औरत भी करती है, तो अपने एतिकाफ की जगह से निकली तो एतिकाफ टूट जाएगा। अगर वो घर में फिर रही है, किसी से बात कर रही है, वो एतिकाफ के कमरे से निकली तो टूट जाएगा, चाहे घर ही में क्यों ना हो। लेकिन एक शक्ल ये है कि औरत एतिकाफ में है लेकिन उसे ज़रूरी चीज़ों के लिए जाना है, जैसे गुस्ल फ़र्ज है, गुस्ल करने के लिए जाना है, पेशाब के लिए जाना है, इस्तिंजा के लिए जाना है या ज़रूरत के लिए जाना है, तो वह एतिकाफ के कमरे से निकले, सीधे गुस्ल खाने जाए या इस्तिंजा खाने जाए और अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर फ़ौरन वह एतिकाफ की जगह वापस आ जाए, किसी से ज़्यादा बातचीत वगैरह करते ना ठहरे। ज़रूरी चीज़ के लिए निकलने की इजाज़त है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ये औरत का मसला है। अब मर्द के मस्जिद से निकलने की, मर्द मस्जिद में इत्तिकाफ करता है तो उससे बाहर, मस्जिद से बाहर निकलने के 2 उज़्र हैं, एक तबई और दूसरा शरई। 2 उज़्र हैं जिससे मस्जिद से आदमी बाहर निकल सकता है, मर्द आदमी। पहला तबई उज़्र क्या है? तबई उज़्र ये है कि जैसे पाखाना, पेशाब, इस्तिंजा या फर्द गुस्ल करना है या वज़ू करना है, जबकि वज़ू के लिए, गुस्ल के लिए, ज़रूरत से फारिग होने के लिए मस्जिद में इंतज़ाम नहीं है, वज़ू खाना नहीं है, बैतुल खला नहीं है, तहरत खाना नहीं है, तो उस सूरत में मस्जिद से आप बाहर निकल सकते हैं और करीब से करीब जगह जहाँ पर आप ज़रूरत से फारिग हो सकते हैं, फारिग हो जाए, वज़ू बना ले, फ़ौरन मस्जिद में आ जाएँ। और मस्जिद में अगर बड़ा हौज़ भी नहीं है, यानी मस्जिद में वज़ू का इंतज़ाम नहीं है, गुस्ल का इंतज़ाम नहीं है, हवाई ज़रूरियात से फारिग होने का इंतज़ाम नहीं है, तो मजबूरन आप अपने, ये तबई उज़्र है जिसको पूरा करने के लिए आप मस्जिद से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जितने करीब, मस्जिद से जितना करीब कोई मकान हो वहाँ पर फारिग हो, वज़ू करे, गुस्ल करे, फ़ौरन मस्जिद में आ जाएं, ये अफजल है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बने। और दूसरा उज़्र क्या है? दूसरा उज़्र है शरई उज़्र, यानी मसलन जुमा की नमाज अदा करने के लिए। जिस मस्जिद में आप एतिकाफ कर रहे हो उस मस्जिद में अगर जुमा की नमाज नहीं होती तो मोतिकिफ को चाहिए कि अपनी मस्जिद से उस वक्त निकले कि जिस मस्जिद में जुमा पढ़ना है, यानी करीब से करीब की मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए वो मुंतखब करे, तो ऐसा वक्त भी करे कि इस मस्जिद से निकल कर जाए, जिस मस्जिद में जुमा पढ़ना है वहाँ पर इमाम साहब के खुतबे से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़े या 4 रकात सुन्नत पढ़े, थोड़ी देर पहले पहुँच जाए, उसके बाद इमाम साहब का खुतबा सुने, नमाज पढ़े और नमाज से फ़ौरन बाद वापस आ जाए। यानी ऐसे टाइम पे पहुँचे कि खुतबे से पहले
वो जुमा की सुन्नतें अदा कर सके और खुतबा सुने, नमाज के बाद फौरन पलट आए और मस्जिद से निकल कर नमाज अदा कर आने के दौरान रास्ते में किसी से गुफ्तगू ना करे, चाय खानी ना करे, किसी से बातचीत वगैरह ना करे, बल्कि जुमा अदा करने जाए तो जुमा अदा करे, फौरन अपनी मस्जिद को आ जाए जहाँ पर वो मोतकिफ है, एहतिकाफ कर रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, तो इन दो उज़्रों के सिवा, यानी तबई उज़्र और शरई उज़्र, इन दो उज़्रों के अलावा किसी वजह से भी मोतकिफ मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकता। अगर निकलेगा तो वो टूट जाएगा उसका एतराफ़, चाहे वो भूले से ही क्यों ना निकल रहा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, और एक चीज ये है कि मोतकिफ दिन रात मस्जिद में ही रहेगा। जो इत्तिकाफ करने वाला दिन रात मस्जिद में रहेगा, मस्जिद में खाएगा, मस्जिद में पिएगा, मस्जिद में सोएगा, इन कामों के लिए अगर वो मस्जिद से बाहर निकलता है उसका इत्तिकाफ टूट जाता है। और मोतकिफ के सिवा, यानी जो इत्तिकाफ कर रहा है उसके सिवा किसी और को मस्जिद में खाने पीने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा शख्स है जो मस्जिद में खाना पीना चाहता है, सोना चाहता है, तो उलमा इरशाद फरमाते हैं ऐसे शख्स को सबसे पहले मुस्तहब एहतिकाफ की या नफली एहतिकाफ की नीयत करनी है, उसके मस्जिद में दाखिल होना है, उसके बाद नमाज पढ़ना है या कुछ जिक्र इलाही करना है, उसके बाद वो खाना चाहता है, पीना चाहता है, वो काम कर सकता है, उसके बाद वो मस्जिद से बाहर निकल सकता है। मगर ख्याल ये करे खाने पीने वगैरह में मस्जिद कहीं आलूदा ना हो जाए, मस्जिद की सफाई सुथराई का ख्याल रखे, कहीं मस्जिद गंदा ना हो जाए, गंदी ना हो जाए, इसका ख्याल रखें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दिन। और औरत अगर एहतिकाफ बैठती है तो औरत को एहतिकाफ में बैठने से पहले हैज़ व निफास से पाक होना चाहिए। नापाकी की हालत में औरत एहतिकाफ नहीं बैठ सकती। और औरत अगर एहतिकाफ करे और उसके लिए कोई खाना बनाने वाला कोई नहीं घर में, वो अकेली है, तो उलमा इरशाद फरमाते हैं सिर्फ अपना खाना बनाने के लिए वो एहतिकाफ की जगह से निकल सकती है, और अपना खाना बनाए, किसी दूसरे का नहीं, फिर वापस अपनी एहतिकाफ की जगह आ जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और उलमा इरशाद फरमाते हैं दौरान एहतिकाफ, औरत एहतिकाफ शुरू कर चुकी है रमज़ानुल मुबारक का, और एहतिकाफ के दौरान औरत को हैज़ आ गया, तो उलमा फरमाते हैं उसका रोज़ा भी टूट जाता है और एहतिकाफ भी टूट जाता है। एहतिकाफ में बैठी है, अचानक है शुरू हो गया, रोज़ा भी टूट गया, एहतिकाफ भी टूट गया उसका। और अगर रोज़ा टूट जाता है तो एहतिकाफ भी टूट जाता है। अगर किसी औरत का एहतिकाफ के दौरान रोज़ा टूट जाता है तो उसका एहतिकाफ भी टूट जाएगा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, आखिरी बात ये कि औरत अगर 1 दिन, 3 दिन, ये 7 दिन का नफली एहतिकाफ करे, ये रमज़ानुल मुबारक का एहतिकाफ सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया जो है वो 10 रोज़ का होता है। लेकिन अगर कोई औरत 1 दिन, 3 दिन या 7 दिन या 5 दिन का एहतिकाफ करती है तो ये नफली एहतिकाफ होगा। और ऐसे एहतिकाफ को भी अगर औरत एहतिकाफ सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया के मानिंद पाबंदी से गुजारे, उसका पूरे शरायत का ख्याल रखे, जिन शरायत का ख्याल एहतिकाफ सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया में रखना पड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके इस इंतज़ाम को, इसके एहतराम को और इस एहतिकाफ में उसके इस एहतमाम को देखकर अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी रहमत कामिला से नफली एहतिकाफ के बावजूद सुन्नत एहतिकाफ अलल किफ़ाया का उसे सवाब अता फरमा सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला उसके इस एहतमाम की वजह से उसकी ज़िंदगी में एक मरतबे माह रमज़ानुल मुबारक में पूरे 10 दिन का एहतिकाफ करने का अल्लाह तबारक व तआला उसे तौफीक भी दे सकता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आज की वीडियो में ये एहतिकाफ के चंद मसाइल थे। इन मसाइल को जानना बहुत ज़रूरी है। आप इन मसाइल को जानें, देखें, और अगर अल्लाह तबारक आप निकाले वक्त में, हम दुनिया में शादी के लिए वक्त निकालते हैं, पार्टियों के लिए वक्त निकालते हैं, हर चीज़ के लिए दुनिया के लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन एक दफ़े कम से कम ज़िंदगी में कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब पाने के लिए एहतिकाफ के 10 दिन निकालें, दुनिया से कट जाए, अल्लाह की तरफ लो लगाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, तो अपने अंदर तक़वा, परहेज़गारी का, खौफ खुदा का, इश्क़ रसूल का, मोहब्बत रसूल को पैदा करने का सबसे बड़ा ज़रिया एहतिकाफ है। इंशाअल्लाह हम एहतिकाफ मुकम्मल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इसके हमें रहमतों से, बरकतों से हमें माला माल फरमाएगा। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रिज़वी को आप सब्सक्राइब फरमा लें, और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो इन वीडियो को लाइक करने के अलावा सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएँ।
और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए और ज़िंदगी में कम से कम एक एतिकाफ हमें हरमैन शरीफैन में करने की तौफीक अता फरमाए। मक्के मुकर्रमा में, मस्जिद नबवी में हमें एतिकाफ करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी आपकी तमाम जायज़ मकासद को हमें कामयाबी अता फरमाए। ज़मीन आसमान के हर बला से और हर छोटे बड़े मर्ज़ से हम तमाम को महफूज फरमाए और फ़लस्तीन के मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए और गज़ा में जितने अहले ईमान शहीद हो रहे हैं उन तमाम के अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और हमारा और आपका खातिमा फरमाए, तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।